السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، و معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت۔ موضوع تفصیل طلب ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرنی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت کے متعلق پیش کروں۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے تو تم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العالمین تمہیں بہت ہی بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ کا اگر ہم پس منظر دیکھیں گے کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے کیوں نازل کیا، تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی ان سے لے لی، جبکہ زمانے جاہلیت کی تھے، حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو یہ شرف حاصل تھا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں، کنجیاں انہی کے خاندان میں رکھی جاتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر ان سے چابی لے لی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر ضرورت پوری ہو گئی ہے، ضرورت اگر پوری ہو گئی ہے تو اس خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی لوٹا دو جو زمانے جاہلیت میں اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ خاص پس منظر ہے اس آیت کریمہ کا، لیکن اس آیت کریمہ کا جو عام مطلب ہے، اس آیت کریمہ کے عموم سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی حق، کسی کا بھی حق، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی انسان کے پاس اگر ہے تو یہ آیت کریمہ ہمیں حکم دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد حقدار کو اس کا حق لوٹا دو۔ حاضرین گرامی، شریعت اسلامیہ نے انسانوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے اس کا تعلق یا تو حقوق اللہ سے ہے یا تو حقوق العباد سے ہے۔
हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है और दोनों की अपनी जगह बहुत ज्यादा अहमियत है। हुकूकुल्लाह यानी नमाज पढ़ो ये अल्लाह का हक है, रोजा रखो ये अल्लाह का हक है, हज करो ये अल्लाह का हक है, सदका व खैरात करो ये बंदे का हक है, ज़कात की अदायगी करो ये बंदे का हक है। तो दोनों चाहे हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद, दोनों की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है। लेकिन उखरवी अंजाम के एतबार से अगर हम देखेंगे, आखिरत को मद्देनजर अगर हम ये बात देखें, तो हुकूकुल्लाह के मुकाबले में हुकूकुल इबाद की अहमियत और हुकूकुल इबाद का मामला ज्यादा संगीन है। हुकूकुल इबाद का मामला ज्यादा सख्त है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े खताकार, बड़े बड़े सियाहकार अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाएंगे। बड़े बड़े गुनाहों को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ कर देगा, बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। लेकिन वहीं पर एक वो शख्स जालिम जो दुनिया के अंदर लोगों पर जुल्म किया करता था, लोगों को के हुकूक को दबाया था, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगा करके खड़ा रहेगा और ये सोचेगा कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर दिया, इतने बड़े बड़े गुनाहगार अल्लाह के सामने आए, अल्लाह ने माफ कर दिया, तो मुझे भी माफी मिल जाएगी और मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जालिम से कहेगा कि मजलूम तेरे सामने खड़े हुए हैं, जाओ पहले उनसे माफी मांगो, जाओ पहले उनसे माफी मांगो। दुनिया में तुमने जिस शख्स पर जुल्म किया था, अगर वो शख्स तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, और अगर वो बंदा तुम्हें माफ नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो हुकूकुल इबाद का जो मामला है, जो बंदों का हुकूक है, इसका मामला उखरवी अंजाम के एतबार से आप देखें तो बड़ा ही सख्त है। और आप देखें हुकूकुल इबाद की बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर आप उसकी तफसील में जाएंगे, औलाद के हुकूक वालिदैन पर, वो वालिदैन के हुकूक औलाद पर, बीवी के हुकूक शौहर पर, शौहर के हुकूक बीवी पर, रिश्तेदारों का हुकूक आपस में एक दूसरे से, पड़ोसियों का हुकूक आपस में एक दूसरे के ऊपर, गोया कि एक इंसान का दूसरे इंसान पर जो हुकूक है, आमतौर पर उसका ताल्लुक इंसानों की तीन चीजों से होता है। एक इंसान की जान, दूसरा इंसान का माल, तीसरी इंसान की इज्जत और आबरू। यही वजह है कि जिस माशरे में किसी इंसान का जान महफूज है, किसी इंसान का माल महफूज है, उसकी इज्जत और आबरू अगर महफूज है तो वो माशरा पुरअमन माशरा कहलाता है, वो माशरा अमन वाला माशरा कहलाता है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दिया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दर्स दिया करते थे, तो अहम अहम मौकों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहा करते थे, और इसी तरीके से कहा करते थे, कहते थे। और यही नहीं बल्कि आप देखें एक अहम मौका हज्जतुल विदा का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह रहे हैं, सुनो, अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुरमति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। सुनो, तुम्हारी जान ऐसे ही मोहतरम है, तुम्हारा माल ऐसे ही मोहतरम है, तुम्हारी इज्जत व आबरू ऐसे ही मोहतरम है जैसे ये शहर मक्का मोहतरम है, जैसे ये महीना मोहतरम है, जैसे ये मकाम मोहतरम है, जैसे ये दिन मोहतरम है, जैसे ये जगह मोहतरम है। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास मौकों पर लोगों के हुकूक के ताल्लुक से, यानी इंसानों की जान, इंसानों का माल और उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दिया करते थे, लोगों को तलकीन किया करते थे। हज़रत गिरामी, अगर आप देखें हुकूक के ताल्लुक से, बंदों के हुकूक के मुताल्लिक अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान दूसरे इंसानों के ताल्लुक से, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी लंबी तफसील है, लेकिन उमूमन जुल्म की जो बहुत सारी सूरतें हैं और हक तलफी कैसे होती है, वो ये कि किसी शख्स ने किसी इंसान के जायदाद में से या उसके घर में से कुछ हिस्सा हड़प कर लिया,
یا हक तलफी हो गई, किसी ने किसी के जान पर हमला कर दिया, हक तलफी हो गई, किसी ने किसी पर किसी के नफ्स पर हमला कर दिया, हक तलफी हो गई, किसी ने किसी को जख्मी कर दिया, हक तलफी हो गई, किसी ने किसी के माल को लूट लिया, हक तलफी हो गई, किसी ने किसी के इज्जत और आबरू पर हमला कर दिया, हक तलफी हो गई, कोई किसी की तहकीर करता है, किसी की तजलील करता है, किसी की चुगली करता है, किसी की बुराई करता है, किसी की गीबत करता है, ये सारी शक्लें ये जुल्म की शक्लें हैं। और ये बात आप याद रखें, दुनिया के अंदर अगर हम इन तमाम चीजों को मामूली समझ रहे हैं तो ये बात आप याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ या उखरवी आखिरत में ये इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है, जुल्म की कोई भी शक्ल हो, ये बात आप याद रखें कि क़यामत वाले दिन बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, युग़फ़रु लिश्शहीदी मिन कुल्लि ज़म्बिन इल्ला दैन, कि क़यामत वाले दिन एक वो शख्स जिसने अपनी जान का नजराना अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में पेश किया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर उसने लड़ाई की और अपनी गर्दन कटा दी, शहीद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, शहीद के सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा सिवाय कर्ज के, यानी कि अगर शहीद दुनिया के अंदर किसी से कर्ज लिया था और कर्ज उसने वापस नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। अब आप सोचें, आप अंदाजा लगाएं कि एक वो शख्स जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद हुआ, शहादत का दर्जा पाया, और लेकिन अगर उसके ऊपर कर्ज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ कर रहा है लेकिन कर्ज को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा। तो आप सोचें कि एक वो शख्स जो दुनिया के अंदर रहते हुए नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है और इसी तरीके से हज भी कर लिया है, उम्रा भी कर लिया है, लेकिन किसी के जायदाद पर कब्जा करके बैठा है, किसी की खेती पर कब्जा करके बैठा है, या इसी तरीके से कोई शख्स अपने भाई के माल को हड़प लिया है, भाई अपनी बहन के उसके जायदाद में विरासत का जो हिस्सा था उसने उसको हड़प कर लिया है, तो आप सोचें कि क़यामत वाले दिन हश्र के मैदान में क्या हाल होगा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा मुफलिस कहा है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा मुफलिस और सबसे बड़ा मिस्कीन कौन है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हम लोग जानते हैं गरीब कौन होता है, मिस्कीन किसे कहते हैं? गरीब वो शख्स है, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब वो है, मुफलिस वो है, अल मुफलिसु मल्ला दिरहम लहु वला दिनार, कि जिसके पास साजो सामान ना हो, जिसके पास रुपए और पैसे ना हो, वही शख्स गरीब है। हम तो गरीब उसी को जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल मुफलिसु मिन उम्मती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क़ दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसने, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो सफ़े अव्वल का नमाजी, यानी नमाज वो पहले सफ में आकर के मस्जिद में अदायगी करता था, और इसी तरीके से रमजान के रोजों के साथ साथ वो नफली रोजों का भी एहतमाम करता था, और ज़कात की अदायगी वो अव्वले वक्त पर देता था, और इसी तरीके से उसने हज भी किया था, और इसी तरीके से उसने उमरा किया था। दुनिया के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी नेकियां अपने नामे आमाल में वो जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगा बड़ी बड़ी नेकियों को लेकर के, और उसके सामने एक तरफ से हकदार खड़े होंगे। किसी पर उसने जुल्म किया, किसी ने उसको गाली दी थी, किसी को बुरा भला कहा था, किसी ने उसका माल लूटा था, एक तरफ से हकदार वहां पर खड़े रहे होंगे, और वहां पर खड़े रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जब फैसला होगा तो देने के लिए कुछ नहीं होगा, ना ही दीनार होगा, ना दिरहम होगा, न रुपए और पैसे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फैसला करेगा कि एक वो शख्स जो सफ़े अव्वल का नमाजी था, फजर की नमाज में पहले सफ पे आकर के वो नमाज की अदायगी करता था, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर वो उसने किसी पर जुल्म किया था, उसका हक दबाया था, या इसी तरीके से
उसको मारा था या उसको गाली दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फैसला करेगा अब वो नमाजें उसकी ना रही, हकदार को दी जाएगी, और उसने अपने नामे आमाल में जो रोजे का अजर सवाब उसके पास रहेगा, अब वो रोजे का अजर सवाब उसका नहीं रहेगा, हकदार को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से जितने हकदार वहां पर खड़े होंगे सबको उसके नामे आमाल में से नेकियां उठा उठा करके दे दी जाएगी, उसके बाद तभी भी हक बाकी रहेगा। देने के लिए कुछ नहीं बचा, हक अभी बाकी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये फैसला होगा कि ये जो हकदार यहां पर खड़े हैं इनके गुनाह को उठा करके उन लोगों के ऊपर लाद दिया जाएगा और उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो शख्स ये लोगों पर जुल्म करते हैं या किसी भी तरह का जुल्म हो, किसी का हक दबाते हैं, बहुत सारे असर रसूख वाले अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिस मोहल्ले में जिस माशरे में रहते हैं गरीबों को दबाते हैं, उनको आवाज बुलंद करने नहीं देते हैं और अपने मुताबिक उन्हें चलाते हैं। ये बात याद रखो कि क़यामत वाले दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस शख्स ने दुनिया के अंदर रहते हुए किसी पर जुल्म किया, किसी का हक दबाया हो, किसी का हक खाया हो, उसे चाहिए कि कब्ल इसके कि उसकी रूह परवाज हो वो माफी तलाफी कर ले। और यहाँ एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा लतुवद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल क़र्रा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जरूर भी जरूर दुनिया में रहते हुए लोगों के हुकूक को अदा कर दो, हुकूक की अदायगी कर दो, इसलिए कि एक दिन ऐसा दिन आने वाला है जो अदलो इंसाफ वाला दिन होगा। ऐसा अदलो इंसाफ वाला दिन होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फैसला करेगा तो ऐसा फैसला करेगा कि दुनिया के अंदर रहते हुए सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग वाली बकरी को दुनिया में मारा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जिंदा करेगा और बेसींग वाली बकरी को सींग देगा, वो उसे मारेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन जो अदल इंसाफ वाला दिन होगा, हर छोटी छोटी चीज का अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा। तो इसलिए हुकूकुल इबाद के सिलसिले में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्म हो जाए ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गाली दे दे, किसी को बुरा भला कह दे, ये हम तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए और मिंबर पर खड़े होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा लोगों के सामने, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नमा अना बशरुन, कि मैं एक इंसान हूं और मेरे भी बशरी तकाज़े हैं। अगर मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए किसी को बुरा भला कह दिया है, दुनिया में रहते हुए मैंने अगर किसी को पर कोड़े लगाए हैं या दुनिया में रहते हुए मैंने किसी को कुछ कह दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो क़यामत वाले दिन तेरी रहमत का उसके लिए जरिया बना दे। और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, जबकि ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पर जुल्म किए ही नहीं, हमारा ईमान है। लेकिन गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर खड़े होकर के हुकूकुल इबाद की अहमियत बतलाना चाहते थे और इसी तरीके से ये बतलाना चाहते थे लोगों के जहन में कि अगर दुनिया के अंदर रहते हुए कोई शख्स अगर के हुकूकुल इबाद के मामले में आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए और बनने से पहले इस तरह से माफी तलाफी कर लेना चाहिए। अब इस सिलसिले में मोमिनाना किरदार क्या होता है, मोमिन जो होता है वो हुकूक का मुहाफिज होता है। मोमिन के पास 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, अगर 1 रुपया भी अगर उसके पास रख दिया जाए और वापस लेने का अगर मामला है तो जो मोमिन होता है वो देने में टाल मटोल नहीं करता है, उसको उस अमानत को ऐसे ही उसे वापस कर देता है। आप देखिए एक बहुत ही मशहूर वाकया आप बारहा सुने होंगे कि 3 शख्स बनु इसराइल में से एक गार में पनाह लिए और उसके ऊपर एक चट्टान आकर के गिर गया। अब तीनों को अपनी मौत नजर आने लगी और उनको ऐसा लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, हम इसी में मर जाएंगे। उन तीनों ने क्या किया, अपनी जिंदगी के अंदर जो उन्होंने अच्छा काम किया था, बड़ी बड़ी नेकियां की थी, उन लोगों ने अपनी नेकियों का वसीला बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा सुन ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नजात दे दी, बच गए वो। उनमें से एक आदमी जो था उसने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे पास एक मजदूर था, मेरे यहाँ एक मजदूर काम किया करता था और हर महीने में उसकी तनख्वाह दे दिया करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो आया, मेरे पास आया ही नहीं, महीना पूरा हो गया, मैं इंतजार कर रहा था कि वो शख्स आएगा और मुझसे तनख्वाह लेने, लेकिन वो आया ही नहीं। अब उसकी तनख्वाह मेरे पास रह गई
और वो आया ही नहीं, मैं उसका इंतजार किया। अब मैंने उसके पैसे से, जो मामूली तनख्वाह थी, कहते हैं कि मैंने उसके पैसे से एक बकरी खरीदी, और एक बकरी से 2 बकरी, यहां तक कि वो बकरियों की एक रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर ली, यानी बकरियों को पूरी एक जमात बन गई। फिर कई सालों के बाद वो शख्स जो अपनी सैलरी छोड़कर चला गया था, वो आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, मैं कई साल पहले मैं तुम्हारे यहां काम करता था, लेकिन आखिरी महीने में मैंने तुम्हारे यहां काम किया, लेकिन बगैर पैसा लिए मैं यहां से चला गया था। मैं तुम्हारे पास आया हूं, वो पैसा जो तुम्हारे पास है, जो मेरा पैसा है, तो मुझे वापस दे दो। वो शख्स कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब उसने मुझसे मुतालबा किया तो मैंने उससे कहा कि ये जो बकरियां तुम देख रहे हो, ये सारी की सारी बकरियां तुम्हारी हैं, तुम इसको यहां से ले जाओ। वो कह रहा है कि मेरा पैसा तो बहुत थोड़ा था, लेकिन ये बकरियां ये कैसे मैं ले लूं? उसने कहा कि देखो, ये जो पैसा तुम मेरे पास छोड़ करके गए थे, जो तुम्हारी सैलरी थी, तुम नहीं लिए थे, मैं उस पैसे से बकरी खरीदा, बिजनेस शुरू किया बकरियों का, और यहां तक कि बहुत ज्यादा बकरियां उसके पास हो गई। उसके बाद उसने कहा ये सारी बकरियां तुम्हारे पास है, लेकर के चले जाओ, लेकर के चले गया। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को सुनी और चट्टान हट गया, वहां से निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो मोमिन होता है वो हुकूक का मुहाफिज होता है। उसके पास अगर पैसा रख दिया जाए, 10 साल के बाद अगर मुतालबा किया जाए, तो जो मोमिन होता है वो वापस कर देता है। और उसके बिल मुकाबिल होता है मुनाफिकाना किरदार। मुनाफिकाना किरदार का मतलब होता है गुंडागर्दी, यानी आदमी अगर पैसे वाला है, बहुत पहुंच वाला है और उस असरो रसूख वाला है, अब लोग उसके यहाँ अगर काम कर रहे हैं या अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के नाम पर, उसके बाद वसूली करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो बाकायदा गुंडों के जरिए इस्तेकबाल किया जाता है। लोग वापस नहीं देते हैं जल्दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, ये मुनाफिकाना किरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज्यादा अहमियत बतलाई है, और हुकूकुल इबाद का मामला बहुत ही संगीन है। खुलफा अपने खुतबों में जब वो इस तरीके से जुमला किया करते थे कि जो तुम्हारे नजदीक ताकतवर है, मेरे नजदीक वो कमजोर है, यहां तक कि मैं उससे उसका हक न ले लूं, और इसी तरीके से जो तुम्हारे नजदीक ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, और जो तुम्हारे नजदीक कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहां तक कि मैं उसका हक ना दिला दूं। तो इसलिए यह खुलफा का आम जुमला हुआ करता था। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हुकूकुल इबाद की अहमियत बहुत ज्यादा है, और उसकी जरूरत भी है। इसको पेश नजर हमें दुनिया के अंदर अपने मामलात को साफ करना चाहिए, मामलात को क्लियर करना चाहिए। चूंकि वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया गया था, तो इस पर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश की। तो जुल्म जो होता है, वो इस शख्स अगर किसी पर जुल्म करता है, तो ये बात आप याद रखें, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम के सामने जालिम को उसकी सजा दे देता है। ये अल्लाह का आम कानून है। ये बात आप देख लें, फिरौन जो इस रुए जमीन का सबसे बड़ा जालिम, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा जाबिर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा कुरैश, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा सफार, जो बनु इसराइल पर जुल्म और तशद्दुद की आग बरसाता था, उन पर जुल्म करता था, बनु इसराइल के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फिरौन को हिलाको बर्बाद किया। और ये बात आप जान लें, और ये बात हम सब जानते हैं कि जब मजलूम के सामने जालिम को सजा मिलती है, तो मजलूम को कलेजे को ठंडक पहुंचती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने से पहले ये चीज करके दिखाता है। और एक बात आप याद रखें कि बहुत सारे लोग जालिम का साथ देते हैं, देखते हैं कि जालिम हक पर नहीं है, लेकिन चूंकि वो पैसे वाला है, वो असर रसूख वाला है, उसके साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, कि तुम जालिम का अगर साथ दोगे, अगर उसमें तुम्हारा कसूर नहीं भी है, तो भी उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगा। इसलिए हमें जुल्म से बचना चाहिए, और हुकूकुल इबाद की अहमियत और इसी तरीके से मामलात को अपना क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हुकूकुल इबाद की अहमियत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।